Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and this is the lecture number 5 of indefinite integration for MHTCET. In this important lecture we are going to solve MCQs, 10 important MCQs from MCQ number 41 to MCQ number 50. So all these MCQs are very important and most selected and specially selected for MHTCET. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ number 41. So see this MCQ number 41. In this question we have to integrate the function. किस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है. So we have to integrate the function sec x upon sec square x plus 1 dx. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं देखें इसका सॉल्यूशन. आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. वीडियो पॉज कीजिए. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हियर आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x upon sec square x plus 1 dx. Okay, so see how which formulas of trigonometry is used to integrate this function. इस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, then only we can integrate this function. So using the basic formula of integration, so this is sec x is 1 upon cos x, sec square x is 1 upon cos square x, so it will be 1 plus cos square x upon cos square x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इस तरह का फंक्शन मिलेगा. sec square x is 1 upon cos square x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 plus cos square x upon cos square x dx. Right, now see here this cos x will get cancel with this cos x. एक cos x यहाँ का कैंसिल होगा और एक cos x ऊपर मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी cos x अपॉन 1 plus cos square x dx. Now this becomes very simple. Cos x dx, cos x is the derivative of sin x, यानी हम इस डिनोमिनेटर में sin x लाते हैं तो sin x को हम t सब्स्टिट्यूट करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं. सो वी नो द आइडेंटिटी cos square x is 1 minus sin square x. cos square x क्या होता है? 1 minus sin square x. So this will become cos x upon 1 minus sin square x, 1 plus 1 2, so it will become 2 minus sin square x dx. Right, now see here we will substitute here sin x equal to t. सब्सटीट्यूशन की मेथड यूज़ करेंगे. पुट sin x इक्वल टू टी. sin x इक्वल टू टी होगा तो इसका डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt. cos x इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे dt बाई dx. dx इधर मल्टीप्लाई होगा cos x dx इक्वल टू dt. सो दिस cos x dx कैन बी रिटन एज dt. सो माई इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर होगा. तो दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर. ये 2 जो है इसे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. राइट, अब ये कौन से फॉर्म का इंटीग्रल है? ये 1 dt मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो फार्मूला मेरे पास नज़र आता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a square minus x square. So what is the integration of 1 upon x square minus a square? 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. फिर से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a है, a कांस्टेंट 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन 2a log of a plus x upon a minus x plus c. So this is the integration 1 by 2a. a is √2 into log of a plus x upon a minus x. So it will be √2 plus t upon √2 minus t, where t is, t क्या है मेरा? sin x. so फिर से हमें t को sin x सब्स्टिट्यूट करने का है. so it is √2 plus t, t यानी what? sin x, and √2 minus t, t यानी क्या है? sin x plus constant of integration c. so this is the integration 1 upon 2 √2 into log of √2 plus sin x upon √2 minus sin x plus c.
तो ऑप्शन चेक कीजिए ऑफ दिस 41, किस ऑप्शन में आंसर हमें दिखाई दे रहा है 1/2√2 into log of √2 plus sin x upon √2 minus sin x, and it is in the third option, and this is 42. See this question, we have to integrate the function, sin x upon sin of 3x dx. This is the given integration of sin x upon sin 3x dx. फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब्सटीट्यूशन की मेथड यूज़ हो सकती है, कौन से स्टैंडर्ड फार्मूले इसके यूज़ होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्विंग दिस, इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकें. सो आई विल यूज़ द फार्मूला ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, ट्रिपल एंगल फार्मूला. साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 sin theta minus 4 sin cube theta. We will use this formula here. So here this is sin x upon sin of 3x क्या होगा 3 sin x minus 4 sin cube x dx. Sin of 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम sin x कॉमन लेंगे. सो अगर यहाँ से मैं sin x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और ये जो कॉमन लिया हुआ sin x, इस sin x से कैंसिल होके ऊपर बचेगा 1 dx. नाउ हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटीग्रल, किस टाइप का ये इंटीग्रल है. तो वन टाइप ऑफ इंटीग्रल इज देयर 1/a plus b sin square x, 1/a plus b cos square x, 1/a plus b sin square x plus c cos square x. So in that type of integral we divide न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. तो पहले हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करेंगे ताकि हमें सब्सटीट्यूशन की मेथड यूज़ कर सके. सो हियर 1/cos square x बनेगा sec square x अपॉन 3/cos square x, 3/cos square x, तो ये बनेगा 3 sec square x minus 4 sin square x upon cos square x, that will be equal to what, tan square x dx. right. नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x. तो यहाँ पे पूरी टर्म हम tan में कन्वर्ट करने की है. दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल. फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. न्यूमरेटर बिकम sec square x एंड डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली हमें tan में कन्वर्ट करने का है. सो यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ sec square x and tan square x, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So this integral will become sec square x upon sec square x को मुझे लिखने का है 1 plus tan square x, 1 plus tan square x, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बिकम 3 plus 3 tan square x. ये क्या होगा 3 plus 3 tan square x. तो ये होगा 3 plus 3 tan square x, 3 tan square x minus 4 tan square x minus tan square x बनेगा. सो इट विल बी 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x will be equal to minus tan square x dx. तो इस तरह का ये इंटीग्रल मुझे मिला है. नाउ हियर व्हाट वी कैन डू, हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. दिख रहा है मुझे डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है sec square x dx. सो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, मुझे सब्स्टिट्यूट करने का है tan x इक्वल टू t. आई विल सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t. सो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x dx इक्वल टू dt. तो मेरा इंटीग्रल इस तरह से मिलेगा sec square x dx, this sec square x dx, this sec square x dx will be equal to what, dt. so it is 1 dt by 3 को मैं लिखूँगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि वो इंटीग्रल उस फॉर्म में आना चाहिए. tan square x tan x इक्वल टू t, तो tan square x क्या होगा t स्क्वायर. फिर से इंटीग्रल किस फॉर्म में, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 1/a square minus x square, 1/a square minus x square. so what is the integration of 1/x square, a square minus x square, that is again 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. so 1/2a क्या है यहाँ पे √3 इंटू लॉग ऑफ a plus x यानी √3 plus t. so t is again what, tan x.
अपॉन a माइनस एक्स। सो अगेन a माइनस एक्स क्या होगा, √3 माइनस t क्या है अगेन tan x प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन sin x अपॉन sin 3x 1/2√3 into log of √3 plus tan x upon √3 minus tan x. See the options 1/2√3 log of √3 plus tan x upon √3 minus tan x, and this is again in the third option. See this 43. This type of integral is solved in just previous questions in 41 and 42. इसी टाइप का इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इंटीग्रल दिया है। राइट हैंड साइड में हमें जो कॉन्स्टेंट्स अननोन फाइंड आउट करने के हैं a, b एंड c। सो बाय सॉल्विंग दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर उस राइट हैंड साइड से हम कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो पहले मैं इस इंटीग्रल को लिख लेता हूँ। फॉर प्रॉब्लम नंबर कितना है 43। सो सी हियर इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या फंक्शन दिया है 4 sin square x प्लस 4 sin x इंटू कॉस एक्स, 4 sin square x प्लस 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस ये दिया है 5 cos square x, और इसका इंटीग्रेशन भी मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज a tan इनवर्स ऑफ b tan x प्लस c, a tan इनवर्स ऑफ b tan x प्लस c। सो कंपेयर करेंगे आंसर को उस राइट हैंड साइड से, ऑलरेडी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। सो अगेन इन दिस केस ऑल्सो वी विल डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। फिर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो ये मैं 1 dx लिख लेता हूँ, 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x, ये मिलेगा मुझे sec स्क्वायर x अपॉन 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये बनेगा 4 tan स्क्वायर x, 4 sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x, cos x अपॉन cos स्क्वायर x 1/cos x, 4 sin x अपॉन cos x क्या होगा 4 tan x। बेसिक पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको समझ में आ रहे होंगे। cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो एक cos x नीचे होगा, 4 sin बाय cos, 4 tan x होगा, प्लस 5 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना होगा 1। सो वी हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट cos स्क्वायर x। तो इस तरह का इंटीग्रल मिला है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है। tan x इक्वल टू t अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हम dt लिख सकते हैं। सो अगेन हियर माय सब्सटीट्यूशन इज tan x इक्वल टू t एंड देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू व्हाट dt, राइट। सो this sec square x dx is dt, so this is 1 dt, this sec square x dx is equal to dt, 1 dt लिख देते हैं। tan x इक्वल टू t है, तो इस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा 40 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। सो टेकिंग 4 कॉमन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 5/4 dt, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म ऐड करने की है 1/4 1 t स्क्वायर प्लस t का कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, लेकिन यहाँ पे कितना है 5/4, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 1। सो 1 प्लस 1/4 कितना होगा 5/4। सो दिस 5/4 आई हैव एडजस्टेड लाइक दिस 1/4 प्लस 1 एंड t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 ये होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मेरा इंटीग्रल अब ऐसा मिलेगा। सो दिस इज 1/4 कांस्टेंट एज इट इज, 1/4 कांस्टेंट एज इट इज into integration of 1 upon t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 ये क्या होगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगा प्लस 1, ओके dt। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, किस फॉर्म में है इंटीग्रेशन 1 x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। सो 1/a x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर है 1/1, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए tan इन्वर्स ऑफ x बाय ए होगा। सो x बाय ए यानी t प्लस 1 बाई टी बाय ए कितना है 1 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 tan इन्वर्स ऑफ, अब ये दिस t क्या है मेरा, t क्या है tan x, सो दिस इज tan x 1 by 4 tan inverse of tan x plus 1 by t. So what is 1 by t here? तो इस 1 by t को हम क्या लिख, सॉरी दिस इज t plus 1 by 2 square, t plus 1 by 2 square, so this will be t plus 1 by 2 and this is tan x plus 1 by 2 plus c right, t square plus t 1 by 4 यहाँ पे एक हमारी मिस्टेक हो गई थी, t square plus t 1 by 4, this is the square of t plus 1 by 2, so 1 by a tan inverse of x यानी t plus 1 by 2 upon a यानी 1। तो यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड क्या दी है, सो दिस इज गिवन एज a tan inverse of b tan x plus c, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड में क्या लिया है के सी हेयर, दिस इज प्लस के। सो उस राइट हैंड साइड को इस आंसर से कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू क्या मिला है, a इक्वल टू क्या मिला है 1 बाय 4 b tan x, यहाँ पे सिर्फ tan x है तो b इक्वल टू कितना मिलेगा 1, c इक्वल टू कितना मिलेगा 1 बाय 2, c इक्वल टू 1 बाय 2, 1 बाय 4 1 1 बाय 2, 1 बाय 4 1 1 बाय 2, these are the values of ABC and these values of ABC are in the fourth option. Now see the question number 44. ये किस टाइप का इंटीग्रल है, सी दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म होती है तो हमें फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, या साइन एक्स का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेन 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसे हमें tan x बाई 2 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना होता है। सी द प्रोसीजर 44, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन व्हाट, cos x 1 माइनस cos x माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे cos x का क्या फार्मूला यूज़ करने का है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, आपको फार्मूले याद हो गए। साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ टेन 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो एज दिस cos x, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे cos x को हमें यूज़ करने का है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को यूज़ करने का है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमें सब्सटीट्यूशन इसमें यूज़ करने का है tan x बाई 2 इक्वल टू टी, tan ऑफ x बाई 2 इक्वल टू टी, इस तरह का मुझे सब्सटीट्यूशन यूज़ करने का है। सो माई इंटीग्रल, मेरा इंटीग्रल होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कॉस एक्स की जगह पे हमें क्या लिखने का है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड साइन एक्स को रिप्लेस करने का है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो आई विल रिप्लेस दिस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ t। सो इसको तो हम t में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन tan x बाई 2 इक्वल टू टी है तो मेरा x क्या बनेगा, x बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स t होगा, x मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, और यहाँ से मेरा dx क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, यानी dx को मुझे लिखने का है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, सो रिप्लेस दिस हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो dx को मुझे लिखने का है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स को जैसे कि मैंने फार्मूला बोला है दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस दिस साइन एक्स, ये कॉस एक्स के लिए मैंने लिखा है।
साइन एक्स को मुझे क्या लिखने का है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये पूरा इंटीग्रल t के फॉर्म में मिल गया है। नाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल हियर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 आउटसाइड, 2 is outside of the integral as this is the constant, so it is 1 upon 1 plus t square। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 plus t square कैंसिल ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 plus t square आएगा आफ्टर टेकिंग LCM। तो यहाँ पे मिलेगा 1 plus t square माइनस 1 plus t square माइनस 2t। ओके, 1 plus t स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 plus t स्क्वायर, और इसका भी 1 plus t स्क्वायर कैंसल। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 1 अपॉन, तो यहाँ पे +1 -1 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 2t। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी डी टी, एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल विद दिस 2। ओके, अब इस इंटीग्रल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं टेकिंग t कॉमन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी कॉमन लेते हैं तो t माइनस 1 डी टी, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करने की है, माइनस टी प्लस टी की एडजस्टमेंट करो। ऊपर है 1 माइनस टी प्लस टी की एडजस्टमेंट की है, क्यों की है अब आपके समझ में आएगा। t इंटू टी माइनस 1 डी टी। अब इसे सेपरेट करते हैं, पहले इस t अपॉन टी प्लस 1, देखिए t अपॉन टी प्लस 1, तो ये टी कैंसिल होगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 आ जाएगा। अब ये 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, तो 1 माइनस टी अपॉन टी माइनस 1, साइन इंटरचेंज है -1 होगा, सो -1 बाई यहाँ पे क्या बचेगा t डी टी। आपको समझ में आया होगा, t अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, टी कैंसिल, 1 अपॉन टी माइनस 1, एंड दिस 1 माइनस टी अपॉन दिस, तो ये 1 माइनस टी माइनस 1 का साइन चेंज है, -1 बाय टी। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग ऑफ t माइनस 1 लॉग ऑफ t माइनस 1 माइनस दिस इज लॉग ऑफ t प्लस सी। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ t माइनस 1 लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग ऑफ m बाई n, t माइनस 1 बाई t प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई t, 1 माइनस 1 बाई t प्लस c विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने की है। सो दिस t इज इक्वल टू दिस t क्या है मेरा t, tan x बाई 2, सो 1 अपॉन tan x बाई 2 होगा। सो इट इज़ 1 अपॉन tan x बाई 2, सो दैट इज cot x बाई 2, cot x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह का ये आंसर मिला है, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो देखिए कौन से ऑप्शन में है, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, दिस इज इन द थर्ड ऑप्शन। दिस इज 45। दिस इज ऑल्सो बेस्ट MCQ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन ऑल्सो ट्राई स्टूडेंट्स, सी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन निकालने का है 45। तो क्या दिया है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सो सी दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाने के लिए क्या स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेशन ले सकें। सो हियर इज़ वन स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप, वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम पहले डिवाइड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं इस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ और एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 लिखता हूँ। ओके, सो मुझे डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म यूज़ करने की है जिसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिले। सो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स माइनस 1 बाय एक्स। यहाँ पे मुझे यूज़ करने का है। सी कैसा फार्मूला है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, राइट।
a minus b whole square a square plus b square minus 2ab. So what I can write for x square plus 1 by x square, x square plus 1 by x square को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये इधर आएगा प्लस 2 और ये 2 प्लस 1 कितना होगा? ये देखिए प्लस 2 प्लस 1 होगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 1 एज इट इज dx, राइट। नाउ सी हियर, सो दिस इज 2 प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब 3 आपके समझ में आया होगा। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट हियर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन इस तरह से मुझे यूज़ करना पड़ा है। नाउ सी दिस इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसे मुझे लिखने का है dt, 1 dt लिख देता हूँ, 1 dt, राइट। अब इसे मुझे लिखने का है x माइनस 1 बाई एक्स को t लिखने का है, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर प्लस ये कितना है 3, तो 3 को लिखूँगा मैं रूट 3 का स्क्वायर। तो फिर से मुझे इंटीग्रल किस फॉर्म में मिला है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह का इंटीग्रल मिला है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अगेन 1 बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1 बाई ए कितना है? रूट 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए यानी टी बाई रूट 3 प्लस सी, सो दिस इज 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। टी किया है मेरा x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 3 प्लस सी। तो फिर से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाय रूट 3 टेन इनवर्स ऑफ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, तो एक्स रूट 3 को मल्टीप्लाई होगा रूट 3x प्लस सी। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 1 बाय रूट 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 3x plus c, and this is in the first option. Now see this question number 46. Here integration is already given, integration of dx upon root of 2ax minus x square is equal to f of g of x। तो मुझे दोनों फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन है राइट साइड में, f of g of x, तो इसमें f of x एंड g of x आर रिस्पेक्टिवली कौन से फंक्शन होंगे, तो इसे हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व ही करना पड़ेगा। सो दिस इज 46 एंड आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसे सॉल्व करके हमें फंक्शन दिया है राइट साइड में f ऑफ g ऑफ x, जिसको हमें फाइंड आउट करने का है। f ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। सो इसको थर्ड टर्म हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो इसे मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। तो ये माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें थर्ड टर्म ऐड करेंगे 1 बाई 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 2 इंटू माइनस 2a, 2 कैंसिल, माइनस a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर ऐड किया है तो a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। सो एडिंग प्लस a स्क्वायर एंड सब्सट्रैक्टिंग a स्क्वायर, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ a, किसका स्क्वायर है अब, दिस इज द स्क्वायर ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो दिस गिवन इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे लिखने का है a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो किस फॉर्म में है इंटीग्रल, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए यानी x की जगह पे x माइनस ए अपॉन दिस a प्लस सी, और इसे हमको राइट हैंड साइड में दिया है
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, ये अलजेब्रिक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे एफ यानी साइन इनवर्स है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स मुझे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। तो हियर जी ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स माइनस ए अपॉन ए। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज दिस, जी ऑफ एक्स इज दिस। कौन से ऑप्शन में है, चेक दिस, चेक द आंसर एंड दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन। Now see this 47, this question is also very important, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 47। सी आई विल राइट दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले यूज़ करने के हैं, सब्सटीट्यूशन भी इसमें यूज़ होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रेशन के कौन से यूज़ होते हैं, देखिए दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, dx अपॉन cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2x, राइट, इस तरह का इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यहाँ पे लिख लेंगे, ओके, दिस इज़ वन एंड द सेम। सो दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या होगा सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा सेक एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा का tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ 2 थीटा लास्ट वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो कॉस ऑफ 2x इज़ 1 माइनस tan square x upon 1 plus tan square x dx, right? So here this 1 plus tan square x क्या होता है, आइडेंटिटी 1 plus tan square x होता है sec square x, और sec square x का स्क्वायर रूट होगा, रूट में है sec square x का स्क्वायर रूट sec x होगा, एंड दिस sec x इस sec x को मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा sec square x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्लियरली दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स, राइट। सब्सटीट्यूशन यूज़ करने का है, किसे t सब्सटीट्यूट करने का है, ये भी हमारे जल्दी समझ में आता है। सो पुट tan x इक्वल टू टी, अगेन सेम टाइप, यानी बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ये सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है, tan x इक्वल टू टी, देयर फोर सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो इस लेक्चर में ये टाइप ही आपका कवर हो जाएगा, tan x इक्वल टू टी है तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। मैक्सिमम मैक्सिमम फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस टाइप ऑफ फार्मूले आर मोस्टली यूज्ड इन दिस लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मुझे इंटीग्रल मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय यानी साइन इनवर्स ऑफ टी बाय 1, साइन इनवर्स टी होगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। सो साइन इनवर्स ऑफ टी क्या था मेरा, tan x, tan x इक्वल टू टी, ये सब्सटीट्यूशन था, तो मैं t को लिखूँगा tan x प्लस सी। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस सी। 47 ऑप्शन चेक कीजिए, साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस सी, एंड दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन, एंड दिस इज 48। सी दिस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। ऑप्शन देख के हमें सब्सटीट्यूशन का भी पता चलता है, ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर एक्स की टर्म, यानी उसके राइट हैंड साइड में जो आंसर दिया है उसमें tan स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करके हमें इस अननोन की वैल्यू मिल सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 48 पहले मैं इस इंटीग्रल को लिख लेता हूँ, 48 इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में जो दिया है हमें
k इंटू लॉग ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या दिया है, साइन एक्स टू द पावर 4, साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 dx, और राइट हैंड साइड में k इंटू लॉग ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, यानी टेन स्क्वायर एक्स को हमें t सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन को आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की है। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आइडिया मिलती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन में उतनी कम ही है। सो सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तभी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आइडिया मिल सकती है। तो ये है ऊपर मेरा tan x dx स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करने की है, cos x टू द पावर 4 को कॉमन लेने का है, टेकिंग cos x टू द पावर 4 कॉमन, तो यहाँ से मैं साइन से cos कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा tan x टू द पावर 4। देखिए tan x टू द पावर 4 tan इंटू कॉस करेंगे तो ये साइन बाय कॉस, कॉस कैंसिल, फिर से साइन बनेगा प्लस 1 dx। आर यू गेटिंग और नॉट। cos x को जब कॉमन लेंगे तो साइन का बनेगा, साइन से cos कॉमन लेते हैं तो साइन tan बनेगा, ये तो कॉमन लिया है। नाउ दिस इज tan x तो एज इट इज है अपॉन cos x टू द पावर 4 का रूट क्या होगा, cos स्क्वायर x को ऊपर भेज देंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस tan x टू द पावर 4, tan x टू द पावर 4 प्लस 1, राइट। तो इस तरह का मुझे मिला है। अब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव देखिए, जैसे कि मुझे राइट हैंड साइड में दिया है इस क्वेश्चन की, इस राइट हैंड साइड में tan x टू द पावर tan स्क्वायर x k इंटू लॉग ऑफ tan स्क्वायर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 1, यानी यहीं से पता चलता है कि tan स्क्वायर x को मुझे t सब्स्टिट्यूट करने का है, उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे एडजस्ट होगा। सो पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x होगा 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो देयरफॉर दिस tan x sec स्क्वायर x, tan x इंटू दिस sec स्क्वायर x dx, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा dt बाय 2। ओके, अब मैं इंटीग्रल इस तरह से लिख लेता हूँ। सो दिस इंटीग्रल I इज इक्वल टू, देखिए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx को मुझे लिखने का है dt बाई 2, तो उसमें का 1/2 ये dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, तो tan स्क्वायर x को मैंने t लिया है तो tan x टू द पावर 4 क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रल कौन से फॉर्म में है देखिए, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज 1/2 लॉग ऑफ एक्स यानी t यानी क्या है, t यानी क्या है tan स्क्वायर x, t यानी क्या है tan स्क्वायर x। ओके, t स्क्वायर लॉग ऑफ t प्लस रूट ऑफ, ऐसा है लॉग ऑफ t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे t होगा tan स्क्वायर x, ये t स्क्वायर यानी tan x टू द पावर 4, राइट हैंड साइड देखिए, और ये है अननोन की वैल्यू। तो वहाँ पे अननोन क्या दिया है क्वेश्चन में, दिस इज़ वैल्यू ऑफ k, तो ये ही मेरा k है एंड दिस वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट 1/2। So 1/2 is the answer to this question and this 1/2 is in the second option. Now it's time to solve the question number 49. Observe this question, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन दिया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, साथ में दिया है फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन में, साथ में दिया है एफ ऑफ 0 है, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, यानी मुझे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। तो मुझे इस फंक्शन को फाइंड आउट करने का है, फंक्शन फाइंड आउट करने का है यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो हियर एफ ऑफ x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ऐसा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें पता है x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू हम लेते हैं tan थीटा। सो dx इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dx इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सो अब देखिए f ऑफ x इस dx को लिख लेता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, नाउ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, 2 कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे सेक क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। सो दिस इज अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेक स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, नीचे 3 सेक स्क्वायर है, ऊपर 2 सेक स्क्वायर है, सो दिस विल बी 1 अपॉन सेक थीटा एंड दिस 1 अपॉन सेक थीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस सी। लेकिन मुझे इस थीटा को फिर से एक्स की फॉर्म में लिखने का है, तो मेरा बेसिक सब्स्टिट्यूशन था tan थीटा इक्वल टू एक्स, tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल थीटा लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू एक्स है, तो ये tan थीटा इक्वल टू एक्स बना, एक्स अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा एक्स। तो मुझे साइन थीटा कन्वर्ट करने का है, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन का रेशो यहाँ पे लिखने का है, तो साइन का रेशो क्या होगा, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। तो मेरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बना है, क्या मिला है एफ ऑफ एक्स, एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एंड फर्स्ट हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, तो 0 आंसर मिलता है। सो इफ़ आई पुट x इक्वल टू 0, 0 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 0, 0 अपॉन 1 0 ही होगा, तो मुझे c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, x इक्वल टू 0। तो मेरा फंक्शन इस तरह से मिला है, एफ ऑफ एक्स मिला है मुझे x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज c इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट, एफ ऑफ 1, पुट x इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1, सो दिस इज एफ ऑफ 1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1/√2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ ऑफ 0 भी दिया था, एफ ऑफ 1 मुझे फाइंड आउट करने का था। सो टू फाइंड एफ ऑफ एक्स मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ा बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू tan थीटा। सी दिस प्रोसीजर, यू विल गेट क्लियर आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो 1/√2 देखिए कौन से ऑप्शन में, येस इट इज़ इन द अगेन सेकेंड ऑप्शन। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 50। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे थे 41 से 50 तक ही, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 50 ऑफ इंटीग्रेशन फॉर MSTCT। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, रूट एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स इक्वल टू टी होगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये dx मुझे मिलेगा, ये जो dx है, दिस dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t dt। ओके, तो इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। dx को मैं लिखने जा रहा हूँ 2t dt अपॉन रूट एक्स को मुझे लिखने का है t
x को मुझे लिखना पड़ेगा, रूट एक्स इक्वल टू टी है तो x क्या बनेगा मेरा टी स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो ये टी कैंसिल होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा। ओके, सो दिस इज डी टी अपॉन कितना सिंपल है 3 स्क्वायर लिखेंगे 9 को, तो बन गया बस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए यानी t/3, राइट। सो दिस इज 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ, तो क्या है मेरा t क्या है रूट एक्स, t क्या है रूट एक्स अपॉन 3 प्लस c। चेक द ऑप्शन चेक कीजिए, 2/3 tan इनवर्स ऑफ, 2/3 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई 3 प्लस सी, 2/3 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई 3 प्लस सी। अगेन दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के लेक्चर के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर MST/CET। तो अब तक टोटल हमने 50 MCQ सॉल्व किए हैं। ऑल दीज MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड फॉर MST/CET। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे MCQ नंबर 51 से, उसमें भी हम 10 इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।